Mute. Samuelson, are you there? Yes, sir. You are the only online student over here. Amisha Jadhav is there. Yes, one more student we have, Amisha Jadhav. Okay, come on, let's start with the today's session. So आज पढ़ना है about Laplace transformation. Today we are going to start with Laplace transformation. Okay. Before we start with the Laplace transformation, I am talking about the module number 3. I'm talking about module number 3. Module number 1 is over from my side. Module number 2, Fourier series, we'll do it later. We are directly starting with now with module number 3, Laplace transformation. 3.1 Laplace transform. Okay. Now, what is the meaning of Laplace transform? Let's try to understand this. As of now, whatever signals we have seen were basically x of t. What's the meaning of x of t? What's the meaning of x of t? Yes, yes. Online students, can you help me out? What is the meaning of x of t? Your Any function of arbitrary time. signal? Yes, any arbitrary signal. और भी कोई आया? ओम माहुकर, कृषि पंचाल, वेरी गुड. ऑनलाइन है यार, कुछ भी बोलते हो, बट तुम्हारे फ्रेंड्स लोग बोलते हैं ऑनलाइन कोई नहीं सर, एवरीवन इज ऑफलाइन नाउ. चलो फाइन, ओके. नाउ सो वी हैव सीन एज ऑफ नाउ इज x of t. अब तक हमने जो कुछ भी देखा इट वाज ओनली एनी आर्बिट्री सिग्नल. नमिता मैडम का बोलना है डॉज बॉल गर्ल सर एवरीथिंग इज x of t. शी इज विनर ऑफ डॉज बॉल. ठीक हो गया यार, ठीक है फाइन, ओके. सो वॉट एवर वी हैव सीन एज ऑफ नाउ वाज x of t. मतलब क्या सर? कहने का मतलब ये है, x of t का मतलब ये होता है कि अगर मुझे ऐसा ग्राफ प्लॉट करना है x of t इक्वल टू sin t, सो ऑन ग्राफ वी यूज्ड टू ड्रॉ x एक्सिस, फाइन, and x axis used to corresponds to time t and y axis used to correspond to x of t. और फिर हम लोग मस्त आराम से गाना गाते हम लोग प्लॉट करने के, टोपी वाटी and so on. Fine. This what is to draw. This is your continuous time signal purely dependent upon time t. Hence known as time domain signal. Hence known as time domain signal. एक मस्त सेशन किया हम लोगों ने मंडे के दिन, गाना, म्यूजिक, डांस, फन, मस्ती आज भी करेंगे हम लोग. फाइन, ओके. Students who are free can join, who want to really enjoy. Okay, fine. Okay, now उस दिन के सेशन में हमने क्या देखा कि जो टाइम डोमेन इंफॉर्मेशन जो सिग्नल होता है वो साइंस से बनता है. कौन बोला ऐसा? फुरियर बोल के चला गया. क्या बोला फुरियर? अकॉर्डिंग टू फुरियर एनी पीरियोडिक वेवफॉर्म इज मेड अप ऑफ साइंस ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स. So if I want to know the ingredients of those sine and cosines contained in that signal, I used to go with what? I need to go with Fourier transform, or we call it as frequency transform. मुझे frequency डोमेन के अंदर सिग्नल को देखना पड़ेगा जिससे ये पता चलेगा कि एग्जाम्पल अगर मैं प्लॉट करता हूं तो यहाँ पे अभी क्या होगा सर? f होगा x एक्सिस पर और यहाँ पे होगा एम्पलीट्यूड. फाइन, यहाँ पे होगा एम्पलीट्यूड और ये मुझे बताएगा कि नाउ दिस सिग्नल विच हैव ड्रॉन ओवर हियर इज मेड अप ऑफ साइन वेव एंड इस फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज. So I'll plot over here that this is 50 and the amplitude over here is for example 5 volt and minus 5 volt. तो मैंने ग्राफ अब ऐसे बना दिया. So this is a sine wave of 50 hertz, amplitude plus 5 minus 5. And same time domain signal now I have drawn in frequency domain format, wherein on x axis I have marked 50 and I have shown that now this signal is comprising only one
sine wave as an ingredient and it is having amplitude equal to +5. Similarly, अगर मैं कहता हूँ कि example, suppose if I draw like this, can you help me? What is the meaning of this? What is the meaning of this? What does it implicates? What does it implicates? Means now the time domain signal that you will be drawing in the future will be made up of two ingredients. What are those? Sine wave of 50 hertz, amplitude 5 volt, and a sine wave of 100 hertz of 8 volt amplitude. So this is the meaning of frequency domain. आपका signal, आपका information, data, message वही है. I'm not going to change the signal at all. बस मेरा देखने का नजरिया अलग है. पहले यहां से देखा तो सिग्नल दिखा, जब ऐसा देखो दिखा हाँ ये है और ये तीनों को कंबाइन करके ये वेवफॉर्म बन के आया है. दैट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन. नाउ अब सुनो क्या करने का. ये x ऑफ t था, बराबर सर. ये x ऑफ t को आपने क्या किया, x ऑफ t के साथ में क्या कर दिया आपने, इसके साथ में आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया. ये x ऑफ t पर आपने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया. तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने पे क्या होगा, एक नया सिग्नल मिलेगा, मतलब नया रिप्रेजेंटेशन मिलेगा. फाइन, ये वर्डिंग्स बोलता है. अब मैं क्या बोलता हूं, सुनो मेरा वर्डिंग्स क्या रहेगा. ये T स्टैंड फॉर व्हाट, T स्टैंड फॉर ये T स्टैंड फॉर टाइम. ये छोटे वाला T स्टैंड फॉर टाइम, टॉकिंग अबाउट इज बड़ा T, ट्रांसफॉर्मेशन. ये बड़ा T stand for transformation. I am going to apply some transformation, some processing, some control on that x of t so that I get another representation. Fine, you can get in. Fine, okay. Done with this. Now, अब मेरा लैंग्वेज सुनिए. ये x of t छोटू है. क्यों छोटू है? अरे स्मॉल x है ना सर, छोटा x है. इसको हमने टाइगर बिस्कुट खिलाया तो क्या बन गया, वो बड़ा बन गया. वेरी गुड सर, बड़ा बन गया. समझा? टाइगर बिस्कुट खिलाया तो वो बड़ा बन गया. और क्या लिखेंगे इसके अंदर हम लोग, टी की जगह पे क्या लिखेंगे, एफ. वेरी गुड. समझा? सर माय क्वेश्चन, यू आई हैव वन क्वेश्चन विथ यू. सो कैन आई से एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स. कैसा है ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स? अरे मल्टीप्लिकेशन में था, वो आगे डिवाइड हो गया. सिंपल ना. ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स ऑफ एक्स ऑफ एफ. सिंपल सर. बिस्किट खाया तो बड़ा बन गया, बिस्किट नहीं खाया तो छोटा बन गया. सिंपल स्टाइल, यू कैन रिमेंबर इन दैट वे. ओके. नाउ सेम थिंग वी विल बी स्टडीइंग इन दिस केस. एफ ऑफ एस दिखा, एफ बड़ा है. एफ बड़ा है. क्यों बड़ा हो गया? क्योंकि उसने क्या खाया, एल खाया. एल मतलब ट्रांसफॉर्मेशन. व्हाट इज एल? एल इज बिकॉज ऑफ लैप्लास. अगर हम पढ़ते फूरियर ट्रांसफॉर्म तो मैं एल की जगह पे क्या लिखता, एफ. फाइन. तो एल के जगह पे एफ लिखते हैं हम लोग. व्हाट इज एल? एफ बेसिकली दे आर ट्रांसफॉर्मेशन, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज अप्लाइड ऑन व्हाट, छोटू एफ ऑफ टी. तो दिस इज द टाइम डोमेन. This is the time domain. When time domain is applied with a transformation, we get what? Frequency domain. समझा आपको यहाँ पे? So guys, now let me clarify with the things what I'm going to do in this case. हम फिर से यहाँ पर आते हैं. Now हमने क्या देखा यहाँ पे? हमने देखा कि सर now I have capital F of S. अभी S कहाँ से आया? आपने तो कहा था F of F लिखना चाहिए, छोटा है frequency. Hold on, let's see what it exactly. F of S is equal to what? How will I get capital F? When I give a biscuit. Fine. एक बिस्किट देने का, उसको एक बिस्किट खिलाने का. किसको खिलाने का? छोटा f of t. Fine. So you get this equation. So similarly I can write therefore f of t is equal to Laplace inverse of f of s. सिंपल. फाइन. ये एल ऐसा क्या करता है जिससे छोटा बड़ा हो जाता है? हमको भी बिस्किट खाना है वो. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट. सो ये एग्जैक्टली क्या होने वाला है यहाँ पे? दिस मीनिंग इज दैट कि दिस एफ ऑफ टी विल बी एफ ऑफ टी, जो पहले था वही होने वाला है. बट यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं? आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई विथ व्हाट? ई रेज टू
माइनस e raised to minus what? Minus of s. अब ये s क्या है? लैप्लास का वेरिएबल है, लैप्लास का वेरिएबल है ये s. यहां पे क्या लिखा है सर आपने? t. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ t? टाइम. छोटा t मतलब टाइम, कैपिटल T मतलब टाइगर बिस्कुट, ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखिए. माइनस ऑफ एस टी. ओके, अभी ये पूरा जो है ये क्या करने वाले हम लोग? सर हमारा जो एफ ऑफ टी था, जो हमारे लैंग्वेज में एक्स ऑफ टी होता है, एनी आर्बिट्री कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल, दैट सिग्नल विल गो फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी. आई होप यू विल एग्री टू दिस. क्योंकि हमें साइन वेव अगर मैं जब बनाने वाला, तो मेरा साइन वेव जो है वो ऐसा तो रहेगा, लेकिन यहां भी रहेगा ना. इट इज फ्रॉम बोथ द साइड्स. It is ranging from minus infinity to plus infinity. So I have to consider all the cases. So that is the reason I'll put your integration sign running from t equal to minus of infinity to plus infinity with reference to time t. समझा? अगर डायरेक्ट बोलते ये लैप्लास एक्सप्रेशन है, रट्टा मारो, तो मजा नहीं आता. यू शुड नो कि एक्सप्रेशन कहां से आया है. फाइन. अब सवाल ये उठता है, सर ये एस ग्रीन कलर ये कौन है? वो बोलने के लिए था, एस मतलब लैप्लाशियन वेरिएबल. कल को राहुल जोशी इन्वेंट करेगा, बोलेगा राहुल ऑपरेटर है. नाम तो करेगा ना अपना. नोबेल प्राइज चाहिए उसको यार, एवरीवन वांट नोबेल प्राइज. फाइन, चलो. Harshita, your dance was superb. Huh? Very nice. Okay. Nobel Prize for Harshita. Okay. Now, what is S, sir? What is S? So, S is a complex variable. S is a complex variable wherein it is given by sigma plus j omega. What is J, sir? What is J now? What is J? Imaginary operator. J stands for imaginary operator equal to under root of -1. Fine. So S equal to sigma plus j omega. Shrutiman, scientist of our class, क्या बोला मालूम? बोला सर e raised to j theta is given by cos theta plus j sin theta. What is this? Same style, sigma plus j omega, where sigma corresponds to cos and omega corresponds to sine, and j as j plus as plus equal as equal. So can I say, if I want to draw that गजब वाला सर्कल जो हमने ड्रॉ किया था लास्ट क्लास में, कि ये है सिग्मा, ये है जे ओमेगा, बिकॉज ये है रियल एक्सिस कोसाइन एक्सिस, ये है इमेजिनरी एक्सिस साइन एक्सिस. समझा यहां तक? ज्योमेट्री में पढ़ाया गया था, ज्योमेट्री 9th स्टैंडर्ड पेज नंबर 2 एग्जाम में बोला जाता है, 2 लाइंस मेक अ प्लेन, 2 लाइंस मेक अ प्लेन. एक लाइन बन गया पूरा प्लेन, एक लाइन बन गया पूरा प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड सो ऑन. फाइन. तो मैंने एक प्लेन बना दिया. इसको मैं क्या कहने वाला हूं? दिस इज नोन एज हेंसफोर्थ एज एस प्लेन or Laplacian plane. Hence this plane is henceforth known as S-plane or Laplacian plane. Understood, sir? Okay. Kindly make a note of this. बहुत ही छोटी-छोटी और मोटी-मोटी बातें हैं. कौन बोला था सर ऐसा? Piri-Simon Laplace. That was the name of the mathematician. 1782. Around 300 years ago. Okay, चलो. Understood, sir? Okay, fine. Now, अब क्वेश्चन आता है हमारे सामने. पे अटेंशन सर, क्या करना है अभी, इसको याद रखिए. फाइन. अब क्वेश्चन ये है, f of t is equal to e raised to minus of at. फाइन. a सर कांस्टेंट, e सर कांस्टेंट. व्हाट इज e वैल्यू? 2.71. व्हाट इज a वैल्यू? Any value ranging from minus infinity plus infinity. You can hold any value, e raised to minus 2t, e raised to minus 3t, e raised to minus of minus 5t, मतलब e raised to plus 5t.
So if I take example, if a is greater than 0, fine, if a is greater than 0, assume let a equal to 2, how will be the nature of the graph? What will be the nature of the graph? यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सर? टाइम, because it is टाइम डिपेंडेंट. यहाँ पे क्या आएगा आपका? एफ ऑफ टी यहाँ पे आने वाला है. तो अगर मैं प्लॉट करने वाला हूं e raised to minus of 2t, don't you think this will be the graph? Let us increase the value of a. Let us assume that a is 5. What will be the nature of the graph? More closer to y-axis, means decay rate will increase. So can I say a defines the decay rate? So can I say a is the decay rate, the rate at which the exponent is going to decay? Fine. So this is the graph that we have drawn. This is the graph that we have drawn in time domain. Confirm? Now what I am supposed to do? अब आता है ये इक्वेशन. अब आता है ये इक्वेशन की बारी. कौन सा इक्वेशन सर? ये वाला इक्वेशन. Come on, start sir. Start writing along with me. What will be the equation? Come on, tell me fast. क्या लिखूं यहां पर मैं? f of s equal to Laplace of e raised to minus of at. समझ रहे हैं सर? मैडम यहाँ पे था f of t. f of t क्या हो गया? e raised to minus at. खत्म, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट. ओके, इक्वल टू आगे बोलिए सर. अब क्या करना है? अब क्या करना है? इंटीग्रेशन रनिंग फ्रॉम t इक्वल टू, कम सर, गेट इन. पूछने का नहीं, डायरेक्ट कुछ जाने का, अपना घर है. फाइन. व्हाट इज f of t? व्हाट इज f of t? e raised to minus at. e raised to minus at. मेहमान आ गए घर में. e raised to minus at. घर में कौन है? घर में कौन कौन है? e raised to minus st dt. जो घर में है वो पिंक कलर है और जो मेहमान है वो ब्लू कलर है. ठीक है. अब क्या करने का? अभी मेहमान और घर वाले साथ में बैठ के बातें करेंगे. कैसे बातें करेंगे? क्या हो जाएगा एक्सप्रेशन फाइनल? बताइए मुझे. आप बताइए मुझे सर क्या करना है. सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए. ये है t इक्वल टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटिव e raised to minus of s minus of a बराबर, ब्रैकेट के अंदर डाला तो ये हो जाएगा प्लस a t डॉट dt. समझा कि नहीं? माइनस s माइनस प्लस माइनस a, t कॉमन बाहर आ गया. सर एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है सर? प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो टाइम डोमेन में एक्सप्रेशन था वो सिर्फ और केवल 0 से इंफिनिटी तक की है. माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में कुछ नहीं है. इल्ले. तो क्या करने का? बोलते एक्सप्रेशन को भी इल्ले करने का. कुछ भी दीपिका पाडुकोने के इल्ले करने. हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0. समझा आपको? Why I'm writing here 0? Because this is a one-sided Laplacian transformation. बड़ी बड़ी बातें, Hollywood terms. One-sided Laplacian transformation. Fine, okay. Come on, solve now. How to solve this? What is the integration of this? हमको पढ़ाया गया था नर्सरी में, नहीं, 11th स्टैंडर्ड में. ICSE पैटर्न है क्या? e raised to x dx. ये इतना बड़ा हलकट आदमी होता है. इंटीग्रेशन करो, डिफरेंशिएशन करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसको. बोलता है मैं झुकेगा नहीं, पुष्पा है साला. मतलब e रेस टू x ही होने वाला है. बोला अच्छा अगर x रहा तो ए नीचे डाल रहे, मतलब नीचे जो भी मस्ती नीचे करने का. ओके, सेम थिंग. बोलिए मुझे सर यहाँ पे आंसर क्या आएगा? e रेज टू माइनस ऑफ s प्लस a, फाइन, t divided by minus of s plus a. इंटीग्रेशन खप्पन. ओके, इधर क्या आएगा सर? प्लस इंफिनिटी and t equal to 0. Substitute the upper limit and lower limit and tell me the answer, sir. इक्वल टू, बोलिए. अभी काम करेंगे, मैं बाहर ले लेता हूं इसको. माइनस ऑफ 1s प्लस a. ठीक है, ऐसा बाहर ले लिया इसको मैंने. अंदर क्या बचा सर? अंदर बचेगा e रेज टू माइनस ऑफ दिस इंटू t.
anything multiplied by infinity will become infinity. So can I say minus of infinity? Upper limit done, minus lower limit, e raised to 0 multiplied by anything is 0. तो can that e raised to minus 0? बोले सर minus 0 थोड़ी होता है, न्यूट्रल है वो, plus 0. Done sir. Now you tell me what is the answer of e raised to infinity? Infinity. E raised to 0. अरे anything raised to 0 is 1. What about e raised to minus infinity? 1 upon e raised to infinity equal to 1 upon infinity equal to 0. Fine. Tell me the answer. Final answer now. 1 upon s plus a. Kindly go through it. क्या किया हम लोगों ने? पूरा एक्सप्रेशन आपके सामने. I deliberately minimize the screen so that entire solution in front of you. Any question? Online students, any problem? Online students sleeping, I guess. Samuelson, Om, Krushi, sleeping, all in the blankets. Okay, चलो. Understood? क्या किया? अब सर सुनिए, यहाँ पे हमने क्या किया है, एग्जैक्टली क्या किया है हम लोगों ने, वो अभी हम समझना है क्या करना है. सर हमने लिखा f of s is equal to Laplace of f of t. Means what? What is f of t? E raised to minus at. तो Laplace of e raised to minus at is equal to 1 upon s plus a. 1 upon s plus a. 1 upon s plus a. Okay? 1 upon s plus a. Fine? अब सुनो सर ध्यान से, यहां पे माइनस था करके इधर प्लस हो गया. अगर यहां पे प्लस होता तो यहां पे माइनस होता, उल्टा पलटा, अपोजिट. बचपन में किया था ना, गुड बैड बॉय गर्ल, उल्टा पलटा, माइनस प्लस, प्लस माइनस. ओके, सिंपल, अंडरस्टूड सर. ओके, नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. अगर मैं ये वाले को देखता हूं, इसमें क्या है? टी. 2t बिकॉज ये टाइम डोमेन है. इसमें टी है ही नहीं, ये टाइम डोमेन है नहीं है. इसमें क्या है? s, क्योंकि ये s डोमेन में है, ये लैप्लेशियन डोमेन में है, ये फ्रीक्वेंसी डोमेन में है. समझा आपको? ओके, नाउ टेल मी सर वन थिंग. So this is S plane, sigma, this is j omega, s equal to plus a ना, s plus a था तो s plus a equal to 0, therefore s equal to minus a. मम्मा हमको बोला s equal to sigma plus j omega. Is there j omega term here? No. मतलब can I write minus a plus j 0? Fine. So can you tell me what is sigma value? Minus a. Where it will come? Minus a. ये तो आएगा ही नहीं. Fine. Now the moment I substitute minus a expression over here, what I will get? Minus a plus a, 0, 1 upon 0, infinity, khamba, pole. Hence s equal to minus a is known as pole of the expression. Hence s equal to minus a is known as pole of the expression. Sir, is pole good or bad? इसने बोला good. You do one thing, you go on the road, you will see a light pole, hang over it. Bad na? Cross. Hence pole denoted by cross. Hence pole denoted by cross. समझा आपको? सर यहां पे अगर आप देखते हो, ये कौन मुझे बताया पोल? कौन बताया मुझे?
मुझे डिनोमिनेटर ने बताया, डिनोमिनेटर ने मुझे बोला कि पोल जो है वो लेफ्ट में आ गया एस प्लेन के। इसने मुझे कैरेक्टरिस्टिक बताया। किसका कैरेक्टरिस्टिक बताया? इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक बताया। इसीलिए मेरे भाई s प्लस ए इक्वल टू 0 को कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, CE, characteristic equation. Kindly make a note of this. Characteristic equation gives you poles of a system. Characteristic equation gives you poles of a system. क्या टैलेंटेड बच्चे और आप लोग। सर मुझे अभी एक चीज आप बता सकते हो कि अगर मैं यहां पे लिखता हूं Laplace of e raised to plus at, so what will happen? 1 upon s ulta palta s minus of a. Therefore, as per characteristic equation, s minus a equal to 0, s equal to a, and now the pole will be on the राइट ऑफ दिस प्लेन। क्या बात है सर, समझा आपको? कहना क्या चाहते हो सर? कहना ये चाहता हूं कि अगर मैं बोलता हूं e रेज टू माइनस at, तो ग्राफ जो था वो डीके हो रहा था, और यहां पे ग्राफ जो है वो क्या होगा? राइज होगा। सुनिए यहां पे e रेज टू माइनस at, yes or no? Fine, na? You, because it exponential, it is decaying. E raised to plus 80. अनस्टेबल मोड। समझा आपको क्या बोलने का? अगर पोल लेफ्ट में है सिस्टम स्टेबल, पोल राइट में सिस्टम अनस्टेबल। अंडरस्टूड दिस? काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस। अगर पोल लेफ्ट में है तो स्टेबल, राइट में है तो अनस्टेबल। पोल राइट में जाना सही है या गलत है? गलत है ना भाई, अनस्टेबल। यार रोबोट का सेकंड पार्ट शुरू हो जाएगा। चिट्टी डिजास्टर करना शुरू कर दिया। हैव यू सीन रोबोट, रजनीकांत वाला? चिट्टी का डिजास्टर करना शुरू कर दे, सब तोड़फोड़ कर देता है। तो वैसा हो जाएगा पोल अगर राइट में चला गया तो। आपका पोल कहां होना चाहिए? लेफ्ट में होना चाहिए। पोल अगर लेफ्ट में रहा तो सिस्टम कंट्रोल में रहेगा, सिस्टम स्टेबल रहेगा। कौन बोला ऐसा? पोल्स ने बताया। पोल कहां से मालूम पड़ा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसलिए नाम दिया कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बिकॉज़ कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है इक्वेशन, सिस्टम क्या होने वाला है। अंडरस्टूड सर? काइंडली मेक अ नोट ऑफ इट। ओके, चलो। ये सब चीजें टाइम डोमेन में पता चलती नहीं। कैसा पता चला? फ्रीक्वेंसी डोमेन में। दैट इज द ब्यूटी ऑफ फ्रीक्वेंसी डोमेन, बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी डोमेन हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई वेदर सिस्टम विल बी स्टेबल और अनस्टेबल। वेरी गुड सर। नाउ दिस इज डन। नाउ टेक दिस एक्सप्रेशन, लैप्लास ऑफ 1। टेल मी फास्ट, क्या आएगा आंसर? कैसा है भाई 1/s? कम ऑन ट्राई टू डू ऑन योर ओन। e रेज टू माइनस st, वो तो लगा नहीं है हमेशा। f ऑफ t आपका क्या है? 1 है, मेहमान 1 है, और घर वाला कौन है? e रेज टू माइनस st, माइनस st डिवाइड बाय माइनस s, 0 टू इंफिनिटी, यू गेट आंसर एज 1/s। समझा? इससे और एक चीज क्लियर हो जाती है। व्हाट इज 1? कांस्टेंट। व्हाट इज 1? कांस्टेंट। कांस्टेंट को अगर लैप्लास में कन्वर्ट किया तो क्या हो जाता है? कांस्टेंट डिवाइड बाय s। इसीलिए जब आपको भगत सर ने पढ़ाया, क्या पढ़ाया? भगत सर ने पढ़ाया अबाउट इलेक्ट्रिकल सर्किट। फाइन, वो टाइम पे सर ने बोला इफ दिस इज द वोल्टेज, कम बेटा, फास्ट 10 वोल्ट, लैप्लास में कन्वर्ट किया, क्या बनेगा? 10/s, कांस्टेंट डिवाइड बाय s। शायद किया होगा आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन नेटवर्क थ्योरी में, एनटी में। इसके लिए किया जाता है बिकॉज इन लैप्लास ऑल कांस्टेंट्स आर डिवाइडेड बाय s, कन्वर्टिंग द गिवन सर्किट
in time domain to Laplacian domain. Fine, understood, sir? Okay. Sir, what about delta function? Laplace. What about delta function? Laplace. Delta function matlab it is only existing at t equal to 0 and the value is 1. What will be the integration? क्या आंसर आएगा? x of t dot e raised to minus st. I hope you all agree to the expression. बराबर है? कैपिटल एक्स टाइगर बिस्किट खिलाया बड़ा हो गया. कैसे बड़ा हो गया वो? क्योंकि हम यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाला हूं छोटू x of t पर. x of t कौन है? मेहमान. घर वाला कौन है? e raised to minus st. x of t की वैल्यू कितनी है? 1. कभी है? जब t 0 है. तो e raised to 0 1. x of t 1. 1 into 1 1. So can I say x of s equal to 1? So delta t का Laplace is 1. The value of impulse function is 1 in case of Laplace. And in case of time domain, the value is 1 only at t equal to 0. All notes are shared with you. ये सब नोट्स शेयर किया ना आपके साथ में Laplace का. एक है लेवल 1, एक है लेवल 2. Laplace basic concepts level 1.pdf और एक है Laplace set level 2.pdf. You can check. Fine, both the things are shared with you. Come on, let's come back to this. Now, step function fast. Laplace step function ये अपनी किया हम लोगों ने सर. 1 upon s constant है ना सर. It is a constant. 1 upon s. You want to know the derivation of this? Sir, we already done the derivation. See, your derivation is in front of you. This is a derivation. The value is 1, 0 to infinity, e raised to minus st upon s. The value is 1, and 1 upon s is the answer. 1 upon s will be the answer. 1 upon s. Done? Okay. Ramp function, fast. Ramp function. 1 by s square. कैसे आया सर? करिए करिए. 1 upon s square कैसे होगा? एक्सप्रेशन आपके सामने है सर. एक्सप्रेशन आपके सामने है. You have to apply UV rule of integration. Eilert. You know Eilert? Inverse, logarithmic, algebraic, trigonometric, exponential. And this is how you compute and get the answer. Simple algebra, 11th standard. What answer you got? One upon s square. One upon s square. Simple 11th standard integration. Eilert rule, UV rule. Can you guys try Laplace transform of sine waveform? Sine. Laplace of sine waveform. A sine omega u of t.
u of t indicates integration running from 0 to infinity. Very good. u of t का काम उतना ही है कि आपके इंटीग्रेशन को लिमिट कर देता है ओनली फॉर वन साइड 0 to infinity. Now you have sine of omega t. What will be the answer? A is constant. Take it outside. Integration of sine omega t. E raised to minus of st. करेक्ट ना? आपका एक्सप्रेशन फाइनल आंसर ऐसा बनना चाहिए. Sine of omega t e raised to minus of st. Now pay attention. सबका ध्यान यहां पर. सुनो ध्यान से. कुछ नहीं करना है. वेरी सिंपल है. कोई डरने घबराने की बात नहीं है. यहां तक समझ गए आपको? आई होप एवरीवन इज ऑन दिस स्टेप. कैसे आया सर? ये है मेहमान, ये है घर वाला. आई होप यू अग्री टू दिस. सर 0 to infinity कैसे आया? u of t के वजह से आया. u of t को का काम उतना ही है 0 to infinity. खत्म. u of t लिखने का नहीं यहाँ पे. आई एम नॉट गोइंग टू राइट u of t एक्सप्रेशन. नाउ व्हाट इज a सर? कांस्टेंट. चल भाई तू बाहर आ जाओ क्योंकि गर्जी में भर्ती हो रहा है. क्यों वर्ड सा यूज किया मैंने? सिंपल ना सर. डिफरेंशिएशन ऑफ 3x क्या आंसर आता है? कैसे आया 3? बिकॉज आपने 3 को बाहर निकाला. बोला 3 बाहर. चल कल्टी मान यहां से d by dx. नाउ दिस कम्स आउट टू बी 3 into 1 equal to 3. फाइन. सिमिलरली a को बाहर निकालोगे. अंदर क्या बचेगा अभी? अब कैसे करूं मैं इंटीग्रेशन? No. I will be doing what? Over here I'll be applying a trick. What is that trick? What is sine theta? What is sine theta? क्या बात है भाई. e raised to j theta minus of e raised to minus j theta upon 2. क्यों किया ऐसा? क्योंकि ये था घर वाला इंडियन, ये था चाइनीज. बोला चाइनीज दिखता मारो सालों को पकड़ के. बोलता है भाई मैं चाइनीज नहीं हूं, मैं इंडिया और नेशनलिटी लेकर आया हूं. घर वापसी. हाँ 2j फाइन. ओके. दिस हाउ व्हाट यू हैव टू डू एंड देन यू हैव टू इन j theta minus st combine and solve. Come on, try करो. Try this. देखो सेम थिंग. श्रुतिमन सेम थिंग. साइन थीटा j थीटा माइनस ऑफ माइनस j थीटा अपॉन 2j. ये लिखा मैंने. 2j कांस्टेंट है, बाहर चला गया. अंदर क्या बचा? e रेज टू j ओमेगा t माइनस st. फिर ये आ गया. दो इंटीग्रेशन सॉल्व करना है. j ओमेगा t माइनस st. t बाहर. अंदर क्या बचेगा? Come on, try to solve this. So this is now Laplace of j omega t and this is as good as Laplace of e raised to minus j omega t. समझा सर क्या किया मैंने? This is the expression of Laplace ना. अभी ये है घर वाला माइनस एस टी और ये मेहमान है ये j ओमेगा टी. इसको मैंने यहाँ डाल दिया. बोला ये Laplace बन गया. This is the Laplace. And you already know the Laplace of e raised to at and Laplace of e raised to minus at. उल्टा पलटा सॉल्व करो. क्या आंसर आएगा? a अपॉन 2j 1 अपॉन s प्लस j ओमेगा. सॉरी s माइनस j ओमेगा. सेकेंड टाइम क्या आएगा? s प्लस j ओमेगा. यहाँ पे प्लस तो माइनस, इधर माइनस तो वहां पे प्लस. फाइन. So you come to this expression finally. You come finally to this expression. Any question at this point?
this J and this J will cancel. Okay. This J will cancel. I'll be left with, again, these two will also cancel. I'll be only left with A omega divided by S square plus omega square. कैसे किया मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया. ओके, सो नाउ आई हैव द न्यूमरेटर एज S minus J omega minus of S and minus of J omega. Fine. So S will cancel. I'm left with minus of J omega minus of J omega. Okay. Then you have what, sir? S minus J omega, S plus J omega, A square minus B square formula, and J square is -1, इसलिए प्लस होगा यहाँ जाके. Okay. Complete this fast, sir. Done till here. Now we will see it later. ROC, don't worry about it. Okay, यहाँ तक complete हो गया आपका. Now, if you see, ROC stands for region of convergence. But what is the meaning of exact that? We'll see it later. Okay. Now you have A as a constant. तो एक फिलहाल मैं बाहर रखता हूं. अंदर क्या बचा मेरे पास में? ओमेगा इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. What is characteristic equation? Denominator equal to 0. न्यूमरेटर से कोई पाला नहीं है मेरा. Forget about numerator. तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? S square plus omega square equal to 0. Characteristic equation CE. So can I say S square equal to minus of omega square? Taking the roots on both the sides, what will I get? S equal to under root of omega square dot under root of -1. I hope you agree to this. So what will I get? What is omega square का root? प्लस और माइनस ओमेगा, प्लस और माइनस ओमेगा. क्यों ऐसा बोला मैंने सर? 4 का रूट क्या होता है? प्लस और माइनस 2. वाई? 2 2 जा 4, -2 इंटू -2 वो भी 4 देता है. तो 4 कैन बी बिकॉज ऑफ +2 इंटू +2 और -2 इंटू. तो कैन आई से ओमेगा स्क्वायर का रूट विल बी प्लस और माइनस ऑफ ओमेगा. And also you have here what, sir? Root of -1. I'll put here S equal to plus or minus J omega. Got it, sir? कैसे आया ये? मामा मेरे को सिखाया था S equal to sigma plus J omega. So what can we say here? Sigma part is 0, real part is 0, only J omega is there. I write here as J or plus or minus J omega. Tell me, sir, कहाँ draw करूं? Only on y axis. Value ले ली सर, omega 2. Let us assume omega equal to 2 plus J2. किधर रहेगा plus J2? ऊपर I call this as plus J2. What about minus of J2? नीचे आ जाएगा. फाइन. तो एक ऊपर एक नीचे. But what is that, sir? Pole. Pole are denoted by cross. Pole are denoted by cross. So I put there cross. Understood? किसका बनाया था सर हम लोगों ने? तो can I say Laplace of sin AT is equal to, what is there, sir? What is there here? A. What is A? Frequency. Sin 2t, sin 3t, sin 5t. If A goes on increasing, compression will happen. Scaling factor is increasing, compression. So can I say it is as good as A divided by S square plus A square. जो भी A रहेगा उसको यहां लिखने का, और जो A है उसको यहां पे स्क्वायर करके लिखने का. Fine. And S square plus A square will give me what, sir? S equal to plus or minus JA. And this what expression I will get? The plot. Same lines can you try on your own for cos? Sin is done. Can you tell me for cos?
फिर शॉर्टकट बता दो आपको, मजा आ जाएगा। टेल मी फॉर कॉस। एग्जैक्टली, फैंटास्टिक फेनिल। फेनिल भाई का बोलना है द फॉर्मूला फॉर लैप्लास ऑफ कॉस ए टी विल बी इक्वल टू, यहां पे क्या लिखा सर मैंने, कॉस एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सर कैसे याद रखना है, कैसे याद रखना है? Before I come to how to remember this, I'll show you a trick how to remember this. Now, I hope you have understood how we have derived this. Any question over here? कि कैसे आया सर ये s square plus a square, s upon s square plus a square? Derivation आप try करिए, you will get the solution. The way we did for sine, same thing is applicable for cos. Okay? Any question? बस फर्क इतना रहेगा कि यहाँ पे आपको प्लस आने वाला है, यहाँ पे आपको e to j थीटा प्लस e to माइनस j थीटा अपॉन 2j। साइन में माइनस लिखा था आपने बीच में, करेक्ट है ना? ओके फाइन। एनी क्वेश्चन इज देयर, प्लीज आस्क मी देयर इटसेल्फ। डाउट रखने का नहीं माइंड में। ओके, अंडरस्टूड दिस सर। व्हाट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? सेम characteristic equation will be same. What is the meaning of characteristic equation? What is the meaning of characteristic equation? Sir, characteristic equation का मतलब ये होता है denominator part equal to 0, दोनों का भी सेम है। कहने का मतलब ये है कि both will have same plot। जैसे यहां पे मैंने क्रॉस बनाया था, सेम क्रॉस आपने इधर भी बनाया, भले वो साइन हो या कॉस हो, बट द प्लॉट विल बी सेम ऑन दी वाई एक्सिस। अंडरस्टूड? चलो अब आता है शॉर्टकट्स। अब हम हमारी औकात पे आएंगे। हम पढ़ाई गेट की कर रहे हैं सर, ये सी तो छिंदी है यार। ये सी में क्या है पता होता है भाई, ये क्वेश्चन आने वाले 5 मार्क के लिए, 10 मार्क के लिए, नहीं आया तो ऑप्शन में डाल दिया, हो गया। गेट में थोड़ी सा ऑप्शन होता है। गेट में डायरेक्टली 1 और 0, आंसर करेक्ट दिया तो 1, रॉन्ग दिया तो 0, डायरेक्ट। सुनो ध्यान, सब क्या करना है। लैप्लास ऑफ, सबका ध्यान बोर्ड पर, लैप्लास ऑफ e रेज टू at, लैप्लास ऑफ e रेज टू माइनस at। आंसर बोलने का फटाफट, उल्टा पलटा प्लस तो माइनस ए। यहां पे क्या लिखेल है भाई, 1 अपॉन एस, वहां पे क्या है माइनस रहा तो प्लस। ठीक है, ओके सर। लैप्लास ऑफ साइन at, आंसर बोलिए, a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, यहां देखिए, इधर आइए, लैप्लास ऑफ कॉस at, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैंने कैसा याद रखा है आपको बताता हूं। ये लाप्लास जो था ना, ये बड़ा हलकट आदमी था। क्यों ऐसा बोला? ये क्या लिखा यहां पे, व्हाट इज रिटन ओवर हियर? वो साइन नहीं बोलने का, उसको शाहीन बोलने का। बोले लड़की है, छोड़ना, लड़की है, इसलिए यहां पे ए लिखा, यहां पे एस नहीं डाला उसने, यहां पे क्या लिखा, ए लिखा, भाव नहीं दिया, बोले ए लिख दे वहां पे, छोड़ना। यहां पे क्या लिखा है सर, कॉस, नाम में है एस, कॉस एस। ये मेरा तरीका याद रखने का, यू कैन रिमेंबर इन अनदर वे, ताकि कंफ्यूजन ना हो कि भाई साइन में ए आता है कि साइन में एस आता है। यू कैन रिमेंबर इन दैट वे, साइन है तो ए, कॉस है तो एस। एस को जरा जोर से, कॉस एस, कॉस एस वहां पे आ जाएगा, फिर मैंने बैठ जाएगा। समझा आपको? अब आगे बढ़िए सर, पे अटेंशन। अभी अगर आप ये देखते हो, ये अगर आप इक्वेशन देखते हो,
characteristic equation s minus a, s minus a equal to 0, s plus a equal to 0, दोनों के लिए सेम है, s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 0. क्या लिखा मैंने? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. सो फ्रॉम दिस आई कैन से s इक्वल टू प्लस a, s इक्वल टू माइनस a एंड s इक्वल टू प्लस और माइनस ja. बराबर? ओके. तो आगे सुनिए. सिग्मा जे ओमेगा, सिग्मा जे ओमेगा, सिग्मा जे ओमेगा. अंडरस्टूड सर? ओके. s इक्वल टू प्लस ए किधर आएगा? किधर आएगा? s इक्वल टू प्लस ए राइट साइड में आ जाएगा. s इक्वल टू माइनस ए किधर आएगा? लेफ्ट साइड में आ जाएगा. s इक्वल टू प्लस जे ए ऊपर आ जाएगा. s इक्वल टू माइनस जे ए नीचे आ जाएगा. तो टाइम डोमेन में आ जाइए. अब तक कुछ नहीं समझ रहा है. टाइम डोमेन में e raised to at, what is the graph? e raised to at, what is the graph? e raised to minus at, what is the graph? Sin at, what is the graph? Cos at, what is the graph? यहां पे क्या मिला? ऑसिलेशंस मिला. ये दोनों केस में ऑसिलेशंस मिला, ये दोनों केस में ऑसिलेशंस नहीं मिला. अंडरस्टूड सर? नाउ ये दोनों जब ऑसिलेशन करना शुरू किया तो ऑसिलेशंस वर कांस्टेंट. मतलब इधर भी टोपी का मैग्नीट्यूड 1, इधर भी 1, आगे भी 1, वाटी भी -1, -1, -1. सेम थिंग इज एप्लीकेबल ओवर हियर. इधर इट इज नीदर डिकेइंग नॉर इंक्रीजिंग. यहां पे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. यहां पे क्या हो रहा है? डिके हो रहा है. अभी समझने वाली चीज है सर, अगर पोल राइट साइड में है तो इंक्रीज होता है, अनस्टेबल होता है. अगर पोल लेफ्ट साइड में है तो डिक्रीज होता है और स्टेबल होता है. अगर पोल बीच में है, मार्जिन में है, न इंक्रीज होता है न डिक्रीज होता है, इसलिए मार्जिनली स्टेबल होता है. समझा आपको? राइट दिस थिंग्स इन योर नोट्स. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर कंट्रोल सिस्टम. Poles has to be on the left side for stable system. If poles are on the margin on y-axis, if poles are on the j omega axis, then system will be marginally or critically stable. If the poles are on the right side, system will be unstable. न्यूमरेटर पार्ट का कोई काम नहीं है. न्यूमरेटर कोई रोल नहीं है. एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ पोल्स. पोल्स किसने दिया? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ने दिया. क्यों? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से पता चलता है कि सिस्टम स्टेबल होगा, अनस्टेबल होगा कि ऑसिलेटरी वाला होगा. सर मेरा एक क्वेश्चन है अभी आपको. अब देख मेरा बच्चा कितना फटाफट बोलने वाला है. This is the game changer. Believe me guys, this is the game changer. Tell me the nature of the graph. नेचर पूछा मैंने, स्टेबिलिटी बात नहीं. नेचर एक्सपोनेंशियल राइज, एक्सपोनेंशियल राइज. क्या बात है. आगे सुनिए सर अभी वंस अगेन. वेरी गुड सर, वेरी गुड. ऑसिलेटरी सस्टेन्ड ऑसिलेशंस, ऐसा बोलने का कसम पे सर बोलेंगे वर्ड्स. सस्टेन्ड ऑसिलेशन, बरखाउसन क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिया. ऑसिलेटर चैप्टर बरखाउसन क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर दिया. मतलब ग्राफ विल बी सस्टेन्ड ऑसिलेशन, neither increasing nor decreasing.
अब मेरे भाई मुझे इतना बता, इतना समझ गया है, तो अगर मैं ये दो क्रॉस को उठा के यहां रखता हूं तो क्या होगा? डरना नहीं है, सिस्टम स्टेबल, कंफर्म स्टेबल, बिकॉज इट इज द लेफ्ट साइड स्टेबल। लेकिन नेचर कैसे होगा? ऑसिलेशंस होगा या नहीं होगा? होगा। क्यों? क्योंकि जे ओमेगा कंपोनेंट है, जे ओमेगा कंपोनेंट है तो ऑसिलेशंस होगा, लेकिन रियल पार्ट भी मौजूद है तो डीके वाला होगा। योर ग्राफ विल बी लाइक दिस। मर गया। ये गेम चेंजर है सर, दिस इज द गेम चेंजर। अगर अभी भी नहीं समझा है तो भाई लास्ट चांस, धमाल वाला चांस। टेल मी द नेचर ऑफ द ग्राफ। क्या क्या क्या? ओके सर, और भी मजा करना है? चल करेंगे सर, मजा क्यों नहीं करेंगे, मजा करने तो बैठे हैं हम लोग। सर यू टेल मी e raised to minus 2t dot sine 4t. Tell me the Laplace. Tell me the Laplace. टेंशन नहीं है सर, टेंशन नहीं लेने का। साइन 4t लिखा है, व्हाट इज द लैप्लास ऑफ साइन? मतलब 4 अपॉन एस स्क्वायर प्लस, खत्म हो गया, हो गया। अब क्या बचा यहां पे? e रेज टू माइनस 2t, माइनस बोले तो प्लस s प्लस 2 का स्क्वायर बराबर क्या आंसर आएगा भाई? s स्क्वायर प्लस 2s बराबर प्लस 4 प्लस 16 इक्वल टू s स्क्वायर प्लस, बोलिए 2s प्लस 16 प्लस 4 20. Take out your calculator, go to mode 5, equation 3. Take out your calculator, sir. सब भेजने में बैठा हुआ है मेरे। इक्वेशन मोड 5 3 फास्ट। हाँ 2 2 4, यस 2 2 4, करेक्ट, 2 2 4, 2ab। क्या आया, क्या आया? -2 प्लस 4 आए। कोट वाला आदमी बोला -2 प्लस J4, कोट वाला आदमी। अरे कोट पहनता ना यार, I love your coat, and very nice. Fine. -2 प्लस J4, आगे 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 आगे, -2 माइनस J4। भाई प्लॉट करके बता ना मेरे को, प्लॉट करके बता ना किधर आएगा। -2 प्लस J4 प्लॉट करके बता ना किधर आएगा। -2 प्लस J4 प्लॉट करूंगा तो ग्राफ इधर आएगा। क्या समझा इससे? यहां पे था -2 एक्सपोनेंशियल डीके बताता है, और ये 4 बताता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, एंड द ग्राफ इज गोइंग टू डीके लाइक दिस। टेलीकम्युनिकेशन, डीजे सांघवी, फादर एकनल विजिटे का बच्चा ऐसे करता है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं करता। क्या बोलता मालूम? यहां पे क्या लिखा है? -2, ओके, -2 4 J4, खटक खटक हो गया, डन। बच्चा क्या करते? बाकी का बच्चा ये लिखेगा, कैलकुलेटर निकालेगा, बोलेगा ये फिर प्लॉट करेगा। मेरा बच्चा डायरेक्ट बोलता है -2 4, बता रहे -2 प्लस 4, खट खट। एक लास्ट क्वेश्चन सर, देन विल स्टॉप। e raised to -4 cos of 2t. Tell me sir fast. -4 इधर आया, J2 इधर आया, क्रॉस क्रॉस खत्म हो गया। झूठ लगता है? वेरीफाई करके देख।
ऐसा स्टंट मारने का डीजे सांगी विजेटिया आईआईटी के सामने बोलने का एसपीआईटी वाला है। थैंक यू वेरी मच। Hello.